علم آثار قدیمہ کی گواہی۔ قدیم زمانے سے ہی صحائف مقدسہ دہریوں اور بے ایمانوں کے حملوں کا سامنا کرتا رہا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ان کی سوچوں اور خیالات سے موافقت نہیں رکھتا تھا۔ ان میں سے بہت سو نے آثار قدیمہ اور کندہ کی ہوئی تحریروں میں صحائف مقدسہ کے خلاف بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن دریافتوں سے انہیں مایوسی ہی ہوئی۔ فلسطین اور میسوپوٹامیہ سے ماہرین نے آثار قدیمہ کے ہاتھوں دریافت ہونے والی کندہ کی ہوئی تحریروں نے بائبل مقدس کی اس حد تک تصدیق کی کہ ان میں سے بہت سے دہریے ایمان لے آئے، کیونکہ دریافت ہونے والی ایسی تحریروں نے بائبلی متون کی صحت کی تصدیق کی۔ ماہرین آثار قدیمہ کی یہ ایک عمومی رائے تھی کہ فلسطین میں 540 قبل مسیح سے پہلے لکھے جانے کا رواج نہ تھا، جس کا ان کے نزدیک مطلب یہ تھا کہ موسیٰ اور پرانے عہد نامے کی دیگر شخصیات نے وہ کتابیں خود نہ لکھی تھیں جو ان سے منسوب تھیں۔ متشکک علماء نے اپنی کتابوں اور قدیم تاریخ کی دریافتوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کی بنا پر دعویٰ کیا کہ توریت کے مصنفین نے واقعات اور مشرق وسطیٰ کی ثقافت کی وسعت کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ تاہم جدید دریافتوں نے ان تمام نظریوں کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے، کیونکہ ان دریافتوں نے مصر، بابل اور شام کی تہذیبوں سے متعلق مختلف تفاصیل میں کتب مقدسہ کی صحت کی تصدیق کی ہے، اور سینہیرب، تغلت پلناصر، نبوکدنضر اور دوسروں کے بارے میں جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ان دریافتوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم وہ تختیاں دیکھ سکیں جن پر وہ حروف کندہ ہیں جو موسیٰ، یشوع، یسایہ، سیمیول اور دوسروں نے استعمال کیے، اور ہم پر یقین ہیں کہ ابراہم، موسیٰ، ایوب، نہمیہ کے وقتوں میں لوگ لکھنے کے عمل سے واقف تھے۔ ہم خوش ہیں کہ مسیح کے الفاظ پتھر چلا اٹھیں گے ہمارے دور میں پورے ہو گئے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے اوپر کندہ کی ہوئی تحریروں کے ذریعے سے، جن میں زیادہ تر بائبل مقدس میں مذکورہ اہم واقعات درج ہیں، ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ تخلیق کی کہانی۔ بابلی اور اسوری کندہ کی ہوئی تحریروں میں تخلیق کی کہانی کا ذکر ہے، اور جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے صرف چند لفظی فرق کے علاوہ وہ اس سے متفق ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ بابلی کندہ کی ہوئی تحریر میں لکھا ہے، خدا نے صحابیہ اور ستارے بنائے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے چوپائے اور رینگنے والے جاندار ان کی جنس کے موافق پیدا کیے، اور بابلی تحریر میں لکھا ہے کہ دیوتاؤں نے یہ جانور پیدا کیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، جبکہ بابلی تحریر میں لکھا ہے، دیوتا مردوک نے انسان کو گوشت اور ہڈیوں سے بنایا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ لوگ گناہ میں گر گئے، زندہ خدا کا انکار کیا اور کئی خداؤں کی عبادت کی، جبکہ نبی کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنی ایسی روش کو چھوڑ کر واحد خدا کی عبادت کریں، جبکہ متشکک علماء نے دعویٰ کیا کہ انسان شروع سے کئی خداؤں کی عبادت کرتا تھا۔ یہ نظریہ بہت سے لوگوں میں پھیلتا گیا، مگر پھر ایک ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ہربرٹ نے، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسوریات کے پروفیسر تھے، انہوں نے اسے رد کیا۔ اس عالم نے کہا کہ سامی اور سمیری مذاہب میں شرک سے پہلے واحد خدا کی عبادت کی جاتی تھی۔ جدید دریافتوں نے اس عقیدے کو رد کیا ہے، جو بہت سے علمی حلقوں میں عام ہے، کہ یہودی مذہب میں واحد خدا کی عبادت 7ویں اور 8ویں صدی قبل از مسیح میں
नबियों की मनादी से पहले मौजूद न थी। बहुत सी तहरीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि मूसा ने इब्रानियों के कनान की सरजमीन में दाखिल होने से पहले खुदा की वहदानियत की तालीम दी थी। इल्म आसार कदीमा ने हमें बाबुली तहरीरों की बदौलत तूफान की कहानी फराहम की है, जो पैदाइश की किताब में दर्ज बयान से मिलती जुलती है। दोनों तहरीरें इस बात का जिक्र करती हैं कि तूफान इलाही मंसूबे के तहत आया और कहानी के हीरो ने दुनिया में आने वाली तबाही के बारे में लोगों को मुतनब्बे किया और तंबीह करने के बाद उसने अपने और अपने खानदान के लिए एक कश्ती बनाई। फिर उसने अपने साथ कश्ती में हर किस्म के जानवरों के नर और मादा पर मुश्तमिल जोड़े लिए ताकि उनकी नस्लें बचाई जा सकें। जब तूफान खत्म हुआ तो कश्ती एक पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई और हीरो ने यह देखने के लिए परिंदे बाहर भेजे कि देखे कि तूफान खत्म हुआ है या नहीं। जब तूफान खत्म हो गया तो उसने खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की, जिसने उसकी दुआ का जवाब दिया और उसे महफूज रखा। कसदियों का ऊर। मेसोपोटामिया में खुदाई से पहले बाइबली उलमा उस सकाफत और तहजीब की वुसअत के बारे में जो वहां मौजूद थी नहीं जानते थे, लेकिन फिर यह वाज़ेह हो गया कि यह वीरान जगह किसी जमाने में बहुत खूबसूरत जगह थी, जहां दरिया बहते थे और जो काबिल जिक्र तहजीब याफ्ता कौम का दारुल हुकूमत था। वहां होने वाली खुदाइयों ने तस्दीक की कि माजी कदीम में सुमेरी लोग वहां बसते थे, जिन्होंने वहां शानदार तहजीब कायम की। जहां तक उनके मजहब का ताल्लुक है, ये सुमेरी कई माबूदों को मानते थे। हर खानदान का अपना बुत होता था, जो राखिल के रवैये की भी वजाहत करता है। जब उसने अपने शौहर याकूब के साथ भागने से पहले अपने बाप लाबन के बुतों को चुरा लिया। इन खुदाइयों से इस बात की भी तस्दीक हुई कि अब्राहम बद्दुओं के किसी कबीले का रहनुमा नहीं था जो खेमों में रहते थे, बल्कि वो एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखता था जो एक शानदार तहजीब की मालिक थी और हारान में बसती थी। और ये हकीकत मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस में पैदाइश 11:28 से 31 से मुताबिकत रखती है। जब हम अब्राहम के तवील सफर पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि ईमानदारों का बाप दोतैन, बैतेल और सिकम से गुजरा, और ये वो शहर हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। फलस्तीन में दरियाफ्त होने वाले खंडरात इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस उस इलाके के बारे में बताती है जो बुहैर मुर्दार के जुनूब में वाक़े है, जहां अब्राहम ने कुछ वक्त कयाम किया, वो बिल्कुल सच है। ये इलाका अब्राहम के अय्याम में गुंजान आबाद था। यूसुफ की कहानी। यूसुफ अपने भाइयों की जालिमाना चालाकी का शिकार हुआ। उसे एक मिस्री काफले के हाथ बेच दिया गया, लेकिन चूंकि वो बेगुनाह और रास्तबाज था, खुदा ने सब बातों में से भलाई पैदा की। उसे फिरौन की निगाह में कबूलियत मिली, जिसने उसे मुल्क मिस्र का हाकिम यानी वजीर खजाना बना दिया। इस कहानी की तस्दीक एक ऐसी तख्ती से हुई है जो एक मशहूर मिस्री की कब्र से मिली, जो यूसुफ का हम असर था। माहिरीन ने इस कंदा तहरीर से ये नतीजा अख्ज़ किया कि उसके अय्याम में एक इंतहाई खौफनाक कहत पड़ा और रियासत ने लोगों में अनाज तकसीम किया जो फरावानी के अय्याम में वजीर खजाना ने जमा किया था, और बदले में रियासत ने लोगों की जायदाद जब्त की। यह बयान पैदाइश 47:18 से 22 से मुताबिकत रखता है। मिस्र में तितमसोयम के जमाने से ताल्लुक रखने वाला एक कंदा किया हुआ पत्थर मिला है, जो फिरौन की एक माबद तामीर करने वाले इब्रानियों को दिखाता है। कई खंडरात भी दरियाफ्त हुए हैं जिनकी दीवारें मोटाई में 8 फीट तक हैं, जो सूरज की रोशनी में सुखाए गए गारा और भूसे से बनाए गए हैं। ये दरियाफ्त खुरूज बाब 5 आयत 7 की तौसीक करती है। सन 1888 में तलल अमारना से एक तख्ती दरियाफ्त हुई जिसमें खते मैखी में तहरीर लिखी हुई थी
कि फलस्तीन के हाकिमों ने फिरौन को तख्तियां भेजीं जिनमें इब्रानी लोगों के हमले की वजह से मदद मांगी गई थी। कुछ उलमा में एक गालिब नजरिया ये था कि शरीयत मूसा के जमाने के बाद आई, लेकिन सन 1884 में डी मॉर्गन की क़यादत में खंडरात की खुदाई ने बाइबल मुक़द्दस के इस बयान की तस्दीक की कि शरीयत मूसा की मारिफत दी गई। डी मॉर्गन ने सोसन के मकाम पर, जिसका जिक्र आस्तर की किताब में है, कई नुस्खों पर मुश्तमिल खजाने को दरियाफ्त किया। ये नुस्खे मूसा की शरीयत के बारे में बाइबली बयान की तायीद करते हैं। रास शमरा में, जो शाम में लताकिया के शुमाल में तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़े है, उगारीद शहर के खंडरात दरियाफ्त हुए हैं। ये 2000 कबल अज़ मसीह में तामीर हुआ था। वहां से सैकड़ों की तादाद में तख्तियां मिली हैं जो बाइबल मुक़द्दस में हत्तियों, हव्यों और फरिजियों के बयानात की तस्दीक करती हैं। तारीख दान अरसे तक हत्तियों के वजूद के बारे में शुकूक का शिकार रहे, जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस पैदाइश बाब 23 आयत 20 में बताती है कि अब्राहम ने उनसे मुकफीला का गार खरीदा था ताकि उसकी बीवी सारा के दफन की जगह हो। ये शक उस वक्त तक कायम रहा जब तक कि उनकी तवारीख दरियाफ्त नहीं हो गईं, जो कदीम मिस्री तख्तियों पर लिखी हुई थी। उनमें से एक पर 1287 कबल मसीह में कादस के मकाम पर हत्तियों और रमेसेस दोयम के दरमियान होने वाली एक जंग के बारे में बयान किया गया है।